Everyone and welcome back to the channel. Today in this video we will be discussing and continuing the synopsis of oral pathology, and we will be doing syndromes related to nerves and muscles. So let's get started to this. These are the syndromes related to diseases of nerves and muscles. So our very first nerve syndrome is Reader's syndrome. Reader's syndrome is also called as paratrigeminal syndrome, or it is also called as paratrigeminal neuralgia. So do you know what it is? It's actually related to trigeminal nerve, and there is unilateral pain in the area of distribution of ophthalmic nerve. Do you know that ophthalmic nerve is the part of trigeminal nerve? Trigeminal nerve have three branches. First one is ophthalmic, then maxillary, then mandibular. So ophthalmic branch, where all the areas which are supplied by that branch, we're gonna have pain there. So that is Reader's syndrome. So the features are like severe headache plus signs of ocular sympathetic paralysis. Do you know what ocular sympathetic paralysis? Ocular means eye, sympathetic paralysis, like the sympathetic supply of that eye, paralysis of that supply, that is pain in that region which is supplied by that sympathetic supply, that is called as ocular sympathetic supply. जो आंख में जो sympathetic supply आ रही है उसका जब डैमेज होता है तो उससे जो पेन उस एरिया में होता है जहाँ पे वो sympathetic supply थी आंख में, that is called as ocular sympathetic supply. यहाँ पे दो फीचर्स होते हैं, एक हेडेक होता है और एक ocular sympathetic supply होती है. Okay, so let's move to another syndrome that is called as auriculotemporal syndrome. Auriculotemporal syndrome is also called as frey syndrome. फ्रे सिंड्रोम, और इसका जो मेन फीचर होता है ऑरिकुलर टेम्पोरल सिंड्रोम, आप देख सकते हैं ऑरिकुलर का क्या मतलब है, ईयर, टेम्पोरल मतलब टेम्पल रीजन, तो उस रीजन का सिंड्रोम फ्रे सिंड्रोम होता है. इसमें बेसिकली गस्टेटरी स्वेटिंग होती है. होता क्या है इसमें, हमारा एक पैच, स्किन का एक पैच होता है कान से आगे, उस पैच पे स्वेटिंग होने लग जाती है जब भी हम किसी को खाते हुए देखते हैं. लाइक दिस, you can see the patch. There's a patch in front of the eye in which sweating and like things occur on that patch, like redness, itchiness and sweating occurs on this patch when you just see somebody or you just eat or something like this. So this is frey syndrome. So this is frey syndrome. इसको वन वर्ड के लिए हम गस्टेटरी स्वेटिंग लिख सकते हैं, गस्टेटरी स्वेटिंग, बिकॉज गस्टेटरी खाने से जो स्वेटिंग होती है उस पैच पे जो कि कान के आगे है, that is frey syndrome. Now let's talk about another syndrome, that is Horner syndrome. What is Horner syndrome? Horner syndrome को हम सिस syndrome भी बोलते हैं. सिस syndrome क्यों बोलते हैं? क्योंकि उसमें काफी सारे वर्ड्स होते हैं जिसका पीछे वाला वर्ड सिस होता है, जैसे कि टॉसिस, मियोसिस, एनहाइड्रोसिस, एनऑप्थेल्मस एंड वेसोडाइलेशन. एनऑप्थेल्मस आपको पता है आंख का बाहर आ जाना एनऑप्थेल्मस होता है. वेसोडाइलेशन मतलब जो वेसल्स होती हैं वो डायलेट कर जाती हैं. Now what is the meaning of ptosis, meiosis and anhydrosis? So here is a figure. Horner syndrome is actually a problem with sympathetic nerve supply to one of the side of face, जिससे कि meiosis, like constricted pupils constrict हो जाते हैं, meiosis कहता है उसे. Ptosis का मतलब होता है droopy eyes जो होती हैं वो droopy गिरने लगती हैं, ऐसा लगता है कि आंख एक साइड से गिर रही है. Anhydrosis का मतलब होता है failure to स्वेट नहीं होता. तो ये सारी चीजें प्लस एनऑप्थेल्मस प्लस वेसोडाइलेशन टुगेदर मेक्स हॉर्नर सिंड्रोम. ओके, सो दिस इज अबाउट हॉर्नर सिंड्रोम, दैट इज टॉसिस, मियोसिस, एनहाइड्रोसिस, एनऑप्थेल्मस, वेसोडाइलेशन. नेक्स्ट इज जॉ विंकिंग सिंड्रोम. जैसे कि नाम बता रहा है जॉ विंकिंग, इसमें क्या होता है, ये जॉ से रिलेटेड एक सिंड्रोम है जिसमें टॉसिस होता है, कंस्ट्रिक्टेड प्यूपिल्स होती हैं, प्लस रैपिड एलिवेशन ऑफ टॉटिक आईलिड अकरिंग ऑन द मूवमेंट ऑफ मैंडिबल टू द कॉन्ट्रोलेटल साइड. इसमें क्या होता है, बेसिकली क्या होता है कि जब हम जॉ खोलते हैं, अपना माउथ खोलते हैं, जॉज को मूव करवाते हैं, तो रैपिड एलिवेशन हो जाती है टॉटिक आईलिड की. जो आईलिड अफेक्टेड है, टॉटिक है, टॉटिक का मतलब जो कंस्ट्रिक्टेड प्यूपिल वाली जो आईलिड है उसकी एलिवेशन होने लग जाती है एक साइड में. अकरिंग ऑन द मूवमेंट ऑफ, किस वजह से होती है, जब मैंडिबल कॉन्ट्रालेटरल साइड पे मूव करता है.
ठीक है। कॉन्ट्रोलेटरल साइड पे जब मूव करता है तो जो हमारी अफेक्टेड आई होती है उसकी जो आईलिड होती है वो एलिवेट करने लग जाती है। ओके, आई कैन शो यू लाइक दिस, इट सीम्स लाइक दिस क्लिनिकली। इट्स अ डिसऑर्डर ऑल्सो रेफर टू एज इनवर्स मार्कस गन phenomenon and oral facial digital syndrome. It's a rare genetic disorder in patients with type 3 of this disorder. Upon movement of the lower jaw, eyelid involuntarily and rapidly rises, causing the eye to open. This is jaw winking. मतलब जब आप अपना मैंडिबल मूव करते हैं कॉन्ट्रोलेटर साइड पे तो जो आंख है वो इनवॉलंटरली बिना आपकी मर्जी से मूव करने लगती है और बड़ी हो जाती है। नेक्स्ट इज ट्रॉटर सिंड्रोम। ट्रॉटर सिंड्रोम का क्या मतलब है? इट्स अ सिंड्रोम विच इज रिलेटेड टू नेसोफेरिंक्स कार्सिनोमा। नेसोफेरिंक्स आपको पता है क्या होता है? फेरिंग्स के 3 पार्ट होते हैं, नेसोफेरिंक्स, ओरोफेरिंक्स, हाइपोफेरिंक्स। नेसोफेरिंक्स वो होता है जो सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है फेरिंग्स का। वहां के जो ट्यूमर्स, जो कार्सिनोमास होते हैं, वो जो ट्यूमर्स होते हैं प्रोड्यूसिंग पेन सिमिलर टू ट्राइजेमिनल रेल्जिया। उनका पेन ऐसा होता है जैसे कि जैसे ट्राइजेमिनल रेल्जिया का पेन होता है। एंड मिडल ईयर डेफनेस, और साथ में जो मिडल ईयर होते हैं, ईयर के 3 पार्ट होते हैं, आउटर ईयर, मिडल ईयर, इनर ईयर। जो मिडल ईयर होता है उसमें डेफनेस हो जाती है। तो ये तो दो चीजें हैं, एक तो ट्यूमर ऑफ नेसोफेरिंक्स, उसकी वजह से जो पेन है, प्लस मिडल ईयर डेफनेस, दीज टुगेदर कंस्टिट्यूट टू बिकम ट्रॉटर सिंड्रोम। आई कैन शो यू नेसोफेरिंक्स ट्यूमर, इनकी साइट आप देख सकते हैं। दैट्स अबव द सॉफ्ट पैलेट, नेसोफेरिंक्स पार्ट होता है। सॉफ्ट पैलेट तक का जो पार्ट होता है फेरिंग्स का, दैट इज नेसोफेरिंक्स। उसके बाद आ जाता है ओरोफेरिंक्स जो कि टंग के बिहाइंड होता है। फिर उसके बाद उससे नीचे जो ग्लॉटिस, आपकी एपिग्लॉटिस के पीछे होता है, वो हाइपोफेरिंक्स होता है। तो नेसोफेरिंक्स के जो ट्यूमर्स होते हैं उनसे एक पेन प्रोड्यूस होता है जो ट्राइजेमिनल रेंज जैसा होता है, प्लस मिडल ईयर डेफनेस हो जाती है। तो इस चीज को हम ट्रॉटर सिंड्रोम बोलते हैं। नेक्स्ट वी हैव ईगल सिंड्रोम। ईगल सिंड्रोम में क्या होता है? डिस्फेगिया हो जाता है। डिस्फेगिया क्या होता है? जब भी हम जॉज को मूव करते हैं अपने, दैट इज पेन ड्यूरिंग मैंडिबुलर मूवमेंट, मैंडिबल को जैसे मूव करते हैं तो पेन होता है, और पेन तब हटता है जब हम जॉज को क्लोज कर लेते हैं। तो दैट इज डिस्फेगिया। प्लस सॉर थ्रोट होता है, प्लस ओटैल्जिया। ओटैल्जिया का क्या मतलब होता है? ईयर पेन, आउटर और इनर ईयर पेन, प्लस ग्लॉसोडाइनिया, दैट इज पेन इन टंग। ग्लॉसो का मतलब होता है टंग, ग्लॉसो वर्ड इज यूज फॉर टंग। तो ग्लॉसोडाइनिया हो जाता है, टंग में पेन हो जाता है, ईयर में पेन हो जाता है, सॉर थ्रोट हो जाता है, प्लस जब आप अपनी जॉज को खोलते हैं तो पेन होता है। दिस इज ईगल सिंड्रोम। आफ्टर दिस वी हैव फ्लॉपी इन्फेंट सिंड्रोम, और फ्लॉपी बेबी सिंड्रोम भी बोल सकते हैं आप इसको। इसमें क्या होता है? देयर इज जर्नलाइज्ड वीकनेस ड्यू टू हाइपोटोनिया। हाइपोटोनिया क्या मतलब होता है? जर्नलाइज्ड मसल टोन वीकनेस, मतलब मसल टोन वीक हो जाती है जिसकी वजह से जो बच्चा होता है वो बैठ नहीं पाता, खड़ा नहीं हो पाता, वॉक नहीं कर पाता। दिस इज फ्लॉपी इन्फेंट सिंड्रोम। नेक्स्ट वी हैव मोबियस सिंड्रोम। मोबियस सिंड्रोम में क्या होता है? मोबियस, मोबियस का मतलब देयर इज पार्शियल एंड कंप्लीट फेशियल पैरालिसिस। इसमें फेशियल पैरालिसिस होता है या तो पार्शियल या फिर कंप्लीट, प्लस ड्रूलिंग ऑफ सलाइवा। लाइक जो हमारे फेशियल मसल्स होते हैं उनका पैरालिसिस, लाइक सारे फेशियल मसल्स। फेशियल मसल्स में कौन कौन से मसल्स आते हैं? आपके मैस्टिकेटरी मसल्स भी आते हैं, बाकी बचे हुए मसल्स भी आते हैं। तो इनके पैरालिसिस की वजह से क्या होता है? मूवमेंट पे कंट्रोल नहीं रहता। जो हमारी आंख होती है, ठीक है, उस पर भी कंट्रोल नहीं होता, प्लस जो हमारा सलाइवा वगैरह होता है वो बाहर आता है, ड्रूल करता है। डिफिकल्टी इन मैस्टिकेशन, मैस्टिकेटरी मसल्स पे कंट्रोल नहीं होता तो मैस्टिकेशन में दिक्कत आती है, और कॉन्जेनाइटल फेशियल डिप्लेजिया भी हो जाता है। सो दैट इज कॉल्ड एज Mobius syndrome. It's a rare neurological condition that primarily affects muscles that control the facial expressions and eye movements. Signs and symptoms of this condition are present from birth. Weakness or paralysis of facial muscles is one of the most common feature of Mobius syndrome. Okay. After we have last syndrome, that is Horton syndrome. Horton syndrome का main feature होता है vascular headache. Syndrome का main feature होता है vascular headache. So this is a short video on all the syndromes related to like disease of muscles and nerves. And in the upcoming video, I will be talking some of the oral aspects of metabolic diseases and further. So if you like the video, do subscribe my channel. Thank you.